फंक्शन खुद को ही कॉल करें. So if a problem can be expressed in a simple terms, in the terms of a smaller version of the same problem, recursion becomes very useful. So important idea जो है, every recursive problem must have two parts. वो आगे जाके discuss करते हैं. One is called base case. It is also called a stopping condition, and the other is called recursive case, which is a smaller version of the same problem जो कि repeat होता है. अच्छा, moving towards the functions. A function क्या है? Any one of you? What is function? Any idea? सर फंक्शन लाइक मतलब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है वो शायद फंक्शन कहते हैं. अच्छा. नॉट So for श्योर. instance, if I hire some person for some task that is called a function, के function दे देते हैं कि ये काम करना है, तो similarly function जो है in program एक self contained block of statements है जो कि हम किसी specific task perform करने के लिए वो define करते हैं. So जितने भी C++ program, they can be thought of a collection of these functions more than a single function. It can be a single function, it can be more than a single function. So using a function is just like hiring a person to do a specific job. So sometimes the interaction with this person is very simple, or in sometimes it's become very complex. So suppose करें कि एक task है जो कि हम perform करते हैं exactly in the same way every time. Like for instance, अगर if you are having a some motorbike, so bi-monthly servicing of your motorbike, you do it time and again. So for such sort of task जो कि आप repeatedly time and again करें, so that sort of thing is called a function. So function call and definition, and there are two things. फंक्शन कॉल इज जस्ट लाइक एक फंक्शन जो है उसे हम कॉल करते हैं, और एक होता है फंक्शन डिफाइन. अच्छा, डिफरेंस इज, फॉर इंस्टेंस मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग अ फंक्शन विद द नेम ऑफ मैसेज. सो इसका तरीका क्या होता है कि मैसेज आप लिख लेते हैं एंड वी हैव स्मॉल पैरेंथेसिस, देन वी हैव सेमीकोलन. दैट मींस कि दिस विल बी शोइंग द सिंटैक्स फंक्शन नेम फॉलोड बाय स्मॉल parenthesis and a semicolon. This shows me कि ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं. अब ये प्रोग्राम में कहीं भी जहाँ पर भी ये डिफाइन हो ये उधर जाएगा. So for instance, it is defined over here. The difference is when I place semicolon, that means I'm calling that function. When I place nothing in front of it, it means I'm defining it. So मैंने define किया message, cout message function. इसमें double quotes में as it is it will be printed. अब क्या होता है प्रोग्राम में मेन फंक्शन के बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इज message. I am calling that function with the name of message. Now I will see कि ये कहाँ पर define हुआ है. It is defined over here. तो जब ये मैंने कॉल किया तो ये कॉल हुआ, तो that will be printed cout message function. नेक्स्ट ये जब एंड हो जाएगा ये फंक्शन, ये दोबारा इधर चाहे नेक्स्ट लाइन जो है हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पास इट विल बी प्रिंटेड एज मैसेज फंक्शन. दिस इज वेटिंग कि कहाँ पर, अच्छा ये वेटिंग है कॉलिंग, देन इट गोज टू जहाँ पर डिफाइन हुआ है वहाँ पर हम देखते हैं, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय दिस. सो दिस विल बी, दिस इज बेसिकली फंक्शन कॉलिंग, अगेन फंक्शन नेम फॉलोड बाय स्मॉल brackets and then semicolon, and function definition is function name and followed by small parenthesis. So this is a function definition. केस की बॉडी में जो भी आप लिखते हैं that is in function definition. Now, this is an example program. For instance, if I say main function, then I have cout. Cout में I am just printing I am in main function, and then you close that. यहाँ पर close हुआ है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हुआ है. Then we, so अब क्या होगा मेन फंक्शन में, पहले ये प्रिंट करते गए I am in main function. नेक्स्ट लाइन में दिस इज कॉलिंग अ फंक्शन विद द नेम ऑफ इटली. तो अब क्या करेगा इटली एंड स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन. अब दैट फंक्शन कॉलिंग इज के ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये इमीडिएटली जाएगा जहाँ पर ये डिफाइन हो विद इन प्रोग्राम, जहाँ भी फॉर इंस्टेंस इट इज़ डिफाइंड ओवर हेड. तो ये फंक्शन कॉल के बाद ये इधर आ गया डिफाइन, यहाँ पर इसने किया सी आउट आई एम इन इटली बैक स्लैश एन न्यू लाइन, ये दोबारा इधर मूव. नेक्स्ट ये ब्राज़ील, ब्राज़ील आएगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये जहाँ डिफाइन हुआ उधर जाके आई एम इन ब्राज़ील,
ये करके दोबारा इसके पास फ्लो चला जाएगा, फिर अर्जेंटीना एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो दिस इज द फ्लो कि पहले आई मीन मेन फंक्शन, नेक्स्ट ये डिफाइन। फॉर इंस्टेंस आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इफ आई से कि अर्जेंटीना में ऊपर करके फिर इटली एंड ब्राजील, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या लगता है क्या होगा? जो तो पहले अर्जेंटीना की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसमें। लाइक फॉर इंस्टेंस क्या होगा? पहले आई मीन मेन फंक्शन, देन देन अर्जेंटीना की जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जैक्टली वो बेस्ड ऑन कि जिस फ्लो में फंक्शंस कॉल हो रहे हैं उसी फ्लो में वो आउटपुट होगा। गुड। अच्छा, नाउ वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर कि C or C++ program must contains at least one function and that function is called a main function। main function होता है, उसके बगैर आपका प्रोग्राम नहीं होता। So at least it will contain at least one function, right? So that means the execution of the program must begin with the main function. So if there are more than one function, then one function out of this must be a main function. There can be more than a single functions. आइए हम define कुछ, some are predefined, some are user defined, हम define कर सकते हैं। So there is basically no limit on number of functions in a program. So functions in a program are called in sequence as mentioned। जिस समय मैंने कहा कि फंक्शंस जो प्रोग्राम में हमने कॉल किए हैं वो उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में उसी में कॉल होंगे जिस समय मेन फंक्शन में। और प्रीवियसली आई हैव जस्ट आस्क्ड फ्यू पीपल एंड यू आर राइट कि जिस ऑर्डर में और जिस सीक्वेंस में वो कॉल होंगे उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगे। सो जब भी एग्जीक्यूट होते हैं, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, सो द कंट्रोल रिटर्न्स टू दैट पर्टिकुलर main function। So we have main में we have cout, I am in main, right? Then we have called a function with the name of Italy, where it will go over here। इधर जाके मैं कहता हूँ cout I am in Italy, इसी के अंदर मैं कॉल करता हूँ ब्राजील फंक्शन को। अब देखें फंक्शन विद इन अ फंक्शन, दो प्रोग्राम्स है। यहाँ पर क्या होगा, मेन फंक्शन में आई हैव प्रिंटेड आई एम मेन, उसके बाद ये इटली प्रोग्राम कॉल हुआ है, तो जिस सीक्वेंस में कॉल हुआ ये जाएगा इस इधर डिफिनीशन में ये फर्स्ट लाइन विल बी प्रिंटेड एज आई एम इन इटली। देन इसी फंक्शन में आई हैव कॉल्ड अनदर फंक्शन विद द नेम ऑफ ब्राजील, so I have called this function, it will just go there। now whenever it will be executed I am in Brazil, इसके अंदर I am calling another function, that is I am in Argentina। अब ये कॉल हो के ये फ्लो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये इसके पास चला जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, ये इसके पास आई एम बैक इन इटली। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये इसके बाद फाइनली आई एम बैक इन मेन फंक्शन। सो द एग्जीक्यूशन फ्लो, फर्स्ट दिस लाइन विल बी प्रिंटेड आई एम इन मेन, ठीक हो गया। नेक्स्ट इटली फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, so what it will do, it will come towards this particular function in which it will be printing I am in Italy। then ये प्रिंट हो गया। देन आफ्टर दैट विद इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन डिफिनीशन के अंदर मैंने एक और फंक्शन को कॉल कर दिया, दैट इज दिस वन। ये इधर चला गया। इसके बाद ये इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, दिस इज अर्जेंटीना। नाउ दिस इज प्रिंटेड। इसके बाद ये क्या दोबारा उधर चला गया, फ्लो एरोज बता रहे हैं कि इधर चला गया। इसके बाद ये बैक इधर चला गया एंड लास्टली, तो ये आई एम बैक इन इटली प्रिंट हो जाएंगे एंड लास्टली इट विल बी प्रिंटेड एज फाइनली आई एम बैक इन मेन फंक्शन। दिस इज हाउ the functions are called and executed। So this is the flow of the programs। अच्छा, function prototype। So function prototypes tell C how C or C++ program how your function will be built and used। कि हम फंक्शन को बता देते हैं। द वन इज फंक्शन डिफिनीशन, वाज इन फंक्शन कॉलिंग, वाज इन फंक्शन प्रोटोटाइप कि फंक्शन में है क्या चीज़। तो फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली कि फंक्शन को बताए कि वो कैसे बनता है और उसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फंक्शन प्रोटोटाइप कंटेन्स फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द फंक्शन। क्या होता है, एक के फंक्शन क्या टाइप ऑफ डेटा रिटर्न करेगा, सो दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप रिटर्न बाय दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो सिंटेक्स होता है डेटा टाइप फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, देन वी हैव द नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिसीव्ड कि उस फंक्शन के अंदर हम कितने पैरामीटर्स, फॉर इंस्टेंस इफ आई से कि आई हैव टू कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ, तो उसमें मुझे दो पैरामीटर्स चाहिए, वन इज लेंथ एंड द अदर इज विड्थ। फॉर इंस्टेंस
if you want to check the rectangle के उसके dimensions देखते हैं और things like that जिसमें आपके parameters, तो parameters are those things जो कि आपको as input चाहिए और forward करना है। तो number of parameters भी आप बताएंगे कि कितने parameters हैं। For instance अब रेडियस है, एक सिंगल रेडियस चाहिए तो जस्ट एक पैरामीटर, फिर उन पैरामीटर्स का डेटा टाइप भी आपने डाला कि वो पैरामीटर्स किस डेटा टाइप के हैं, एंड देन द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स कि वो किस ऑर्डर में उन पैरामीटर्स को हमने यूज करना है। सो ये हम एग्जांपल्स के साथ भी देख रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू सेंड इनपुट एज अ पैरामीटर्स टू फंक्शन, ज़रूरी नहीं है to have function return values, ये भी ज़रूरी नहीं। So in such case programmers mention कि ज़रूरी नहीं कि हम लाजमी पैरामीटर्स को भी कुछ ना कुछ डेटा टाइप दें, असाइन करें, एंड फंक्शन को भी कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप दें, ये भी ज़रूरी नहीं। सो इन सच केसेस फंक्शंस में हम वाइड पैरामीटर यूज करते हैं और रिटर्न जस्ट एंड गेट। अब इसमें देखिए सिंटेक्स क्या होता है। द सिंटेक्स इज वी हैव अ डेटा टाइप followed by a function name, and then we have basically parameters. अगर आपके प्रोग्राम को ज़रूरत ही नहीं, पैरामीटर्स ही नहीं पास करें, जस्ट सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, इन दैट केस आपको रिटर्न टाइप void for the function return type, and the for parameters again it is void. So void is used if you don't pass the value or parameters to some functions. तो ये जरूरी है। तो ये भी आपके ये केस हो गया कि अगर for instance in that case मैं simply see out statements print करना चाहता हूँ तो return type void. Same goes for the parameters if you have empty list of parameters. Again explaining this with the help of an example, we have a function, यहाँ फंक्शन प्रोटोटाइप ही है। तीन फंक्शंस मैंने बता दिए हैं, इटली फंक्शन, ब्राजील, अर्जेंटीना। इसके पैरामीटर्स नहीं है तो वाइड वाइड वाइड। सेम इसके रिटर्न टाइप, हम कोई रिटर्न नहीं करना चाहते कोई डेटा टाइप तो हम वाइड कर दिए। तो दिस इज प्रोटोटाइप। कमिंग टूवर्ड्स द मेन फंक्शन, सो वी हैव printf और cout। आई एम इन मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन डिफाइन हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर वी हैव दिस फंक्शन कॉलिंग इटली फंक्शन। तो ये आपने लास्ट एग्जांपल से ये इधर चला जाएगा, इधर आके ये इटली, इसमें ये ब्राजील, ब्राजील के फंक्शन में थिंग्स है वही एग्जीक्यूशन है। इसमें एक चीज ऐड हो गई, जब भी आप फंक्शन बताते हैं फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज फंक्शन प्रोटोटाइप विच इज दिस पर्टिकुलर थिंग, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग इज दिस, फंक्शन नेम with this and semicolon, and we have function definition. So this is function prototype. Then we have, these are the function definition and function calling. You can just say check it. तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। So basically important points till now is C program is a collection of one or more functions. A functions get called when the function name is followed by the semicolon, जिससे मैंने कहा फंक्शन कब कॉल करते हैं हम, जब फंक्शन नेम फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ parentheses and then followed by a semicolon. So program is a collection of one or more function in which one must be a main function, and a function gets called when the function name is followed by a semicolon. So this is called function calling. Function is defined when a function name is followed by a pair of braces in which one of more statement may be present, just like this. Function definition में हम pair of braces है function name के बाद, and then we have curly braces in which we have more than a single statement. We can have a single statement or more than a single statement. अच्छा, any function can be called from any other function. ये points याद रखने हैं, इसी तरह के questions paper में आएंगे whether it is valid or not. So कोई भी function can be called from any other function. Like for instance, हम क्या करें इसमें देखें, main function के अंदर I am calling this message function. This function I have called. Now this function जब ये कॉल होता है ये चला जाता है इधर जहाँ पर डिफाइन हुआ, इसके अंदर मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ मेन में। तो दिस इज जस्ट लाइक कि हम फंक्शन विद इन अ फंक्शन, सो वी कैन कॉल वन फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। इन प्रीवियस एग्जांपल इफ यू सी, यहाँ भी विद इन फंक्शन देखें, फंक्शन कॉल हुई, उस फंक्शन के अंदर डिफिनीशन के अंदर आई एम कॉलिंग सम अदर फंक्शन, सो आई कैन डू इट दैट वे एज वेल। So just like this, a function can be called from any other function. Even main can be called from it. So for example, in this case, I am calling main function for some XYZ function. I can do it.
अगेन पॉइंट इज कि एक तो ये कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, अगेन आई कैन इवन कॉल द मेन फंक्शन एज वेल. Secondly, coming towards a function can be called any number of times. For example, what will be printed in this particular case? जी, any input? सर इसमें The मैसेज message जो है two वो times. 2 दफा प्रिंट सर होगा. 2 दफा हो जाएगा, 2 दफा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा. जी गुड, माशाल्लाह, रिस्पॉन्स इज गुड एंड यू आर एक्टिव, दैट्स गुड. एक दफ़ा मैंने कॉल किया, ये इधर चला गया, सो हेलो वर्ल्ड विल बी प्रिंटेड. अगेन आफ्टर दिस द नेक्स्ट लाइन ऑफ फ्लो उसमें चला जाएगा, उसमें अगेन मैंने कॉल किया, सो अगेन इट विल बी प्रिंटेड, दैट इज हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड विल बी प्रिंटेड ट्वाइस, दैट्स गुड. अच्छा, सेकेंडली ये कुछ रूल्स मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन किसी भी फंक्शन से हम कॉल कर सकते हैं. सेकेंड रूल मैंने ये बता दिया कि फंक्शन मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं. तो थर्ड, the order in which the functions are defined in a program and the order in which they. अब एक और डिफिनीशन है कि डिफिनीशन आप किसी ऑर्डर में कर सकते हो, कॉलिंग इस ईयर. सो जरूरी नहीं कि ये जिस ऑर्डर में आप कॉल कर रहे हो डिफाइन भी उसी ऑर्डर में हो, दैट्स नॉट मस्ट. सो दैट डजंट नीड टू बी नेसेसरीली द सेम. सो इन दैट केस क्या होगा कि मेन फंक्शन के अंदर मैं मैसेज वन, दैट फंक्शन है इज कॉल्ड, राइट. सो दैट मीन्स कि वो अगर कहीं भी डिफाइन हो, सो फर्स्ट दिस one is called, so we will be going this way. So let us see, ये होगा, या let us see plus plus. Again it will be shifted to the next line, it will be message 2, then the next message to hello world. So the printing lines will be let us see and then it will be followed by hello world. तो ये इस पोजीशन में प्रिंट होंगी जिस पोजीशन में ये कॉल. So a function can call itself. Again, function अपने आप को भी कॉल कर सकते हैं. This is basically the crux of today's topic. कि recursion क्या होती है, कि a function can call itself iteratively or in pieces. So such a process is called recursion. खुद को कॉल करना. So a function cannot be defined in another function. Function कॉल कर सकते हैं किसी भी function से, but you must remember the function cannot be defined in another function. डिफाइन नहीं कर सकते कि फॉर इंस्टेंस आपने इटली फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर आप कोई और फंक्शन डिफाइन कर सकते, डिफिनीशन नहीं कर सकते, जस्ट यू कैन कॉल इट. पॉइंट्स याद रखने. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. वन आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम डिफाइन करते हैं, लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील. सम आर लाइब्रेरी फंक्शंस, सी आउट सीन एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. तो दो टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं. सो मेन फंक्शन में वी हैव, फॉर इंस्टेंस, I have printf, I am in main, and then I am doing कि इसी फंक्शन में मैं डिफाइन करूँ एक और फंक्शन, so that is invalid. तो ये गलती अभी नहीं करनी. Now coming towards the recursion function. So a recursion function must call itself. So only and only user defined functions are used in recursion, not library defined function या जो predefined function है. और देयर शुड बी सम टर्मिनेटिंग कंडीशन, जहाँ पर उसे बेस केस कहते हैं कि कहीं ना कहीं. सो विदाउट अ बेस केस द फंक्शन विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ फॉरएवर, जिसको इनफिनिट रिकर्जन कहते हैं, और स्टेक ओवरफ्लो हो जाता है. सो वी हैव सी प्लस प्लस में एनी फंक्शन कैन कॉल एनी अदर फंक्शन, another function. A function can even call itself. So whenever a function call itself, it is making a recursive call towards itself. तो रिकर्सिव कॉल क्या होती है? फंक्शन कॉल इन विच द फंक्शन बीइंग कॉल्ड इज द सेम एज द फंक्शन मेक. जो कॉल कर रहा है और जो कॉल जिसे मिला रहा है, तो वो दोनों सेम होते हैं. सो दैट इज अनदर पावरफुल टेक्निक विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ आइट्रेशन. जो लास्ट टाइम हमने लूपिंग की थे, तो उसके अगेंस्ट हम फंक्शंस को रिकॉल भी कर सकते हैं रिकर्सिवली. सो रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोसीजर एंड फंक्शंस call themselves. So क्या क्या होता है? An recursive algorithm क्या होता है? An algorithm that calls itself. Approach क्या, कैसे approach? Solve small problem directly. हम small problems जो हैं उन्हें directly solve कर सकते हैं using recursive approach.
क्या करते हैं, सिंप्लीफाई लार्ज प्रॉब्लम इनटू वन और मोर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम रिकर्सिवली या इटरेटिवली उन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को हम कॉल करते हैं. सो कैलकुलेट द सोल्यूशन फ्रॉम सोल्यूशन यूजिंग फॉर सब प्रोग्राम. ये हम करते हैं विद द हेल्प कि कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड करते हैं. सो अ डेफिनेशन विच in which something is defined in terms of उसी के smaller version को define करते हैं. So to do recursion we should know the following. दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. The first is base case. जब भी आप recursion करते हैं, it's a smaller version of itself, it's calling. We have a base case, the case for which the solution can be stated non-recursively. In simple words, I can say कि यहाँ पर फंक्शन कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन जो स्टॉपिंग कंडीशन होती है, टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, जहाँ पर उसने खत्म ही होना है. सो द केस फॉर विच द आंसर इज एक्सप्लिसिटली नोन, कि यहाँ पर आके हमें पता चल जाए कि ये एक्सप्लिसिटली नोन है, ये आंसर होगा. एक जनरल केस होता है जो द केस फॉर विच द सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन स्मॉलर वर्जन, उसी के इटरेटिव वर्जन होते हैं. सच केस को हम रिकर्सिव केस, तो एक हमारे पास रिकर्सिव केस हो गया या जनरल केस, एक बेस केस. कमिंग टूवर्ड्स दिस, इसको समझें, ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, we can write a function called power that calculates the result of raising an integer to a positive power. If x is an integer and n is a positive integer, the formula of x of n. फॉर इंस्टेंस हम कहें कि पावर कैलकुलेटिंग के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें वी हैव रेजिंग इंटीजर टू अ पावर ऑफ n. एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ये और पावर ऑफ n. सो x ऑफ n हम किस तरह लिख सकते हैं? वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट x ऑफ n इज इक्वल टू, वी मल्टीप्लाई x n टाइम्स x को आपस में मल्टीप्लाई करें, दैट इज अ केस. नेक्स्ट, हम इसी फॉर्मूला को वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट, इसी फॉर्मूला को x इंटू x सारे, और these are n minus 1 times. So we can just write x into x n minus 1 times. Same इसी फॉर्मूला को again I can write it x power n is equal to x square into x this. So this is x into x and the remaining is n minus 2 times. Simply we can write this formula x power n is equal to x into x power n minus 1 हम लिख सकते हैं simply. अब ये करते हैं with the help of example. So now let us just suppose that x is equal to the base is 3 and the power is 4. So x of n is equal to 3 power 4. Now we can simply simplify the above equation as 3 power 4 is equal to 3 into 3 power cube हम लिख सकते हैं. 3 into 3 into 3 into 3. Then we have 3 cube. इस 3 cube को मजीद अगर हम solve करें, so we can just write it 3 into 3 square. इस 3 square को मजीद मैं split करूं तो we have 3 into 3 power 1. So what I am doing step by step, 3 power 4 को मैं लिख सकता हूं 3 into 3 cube. इस 3 cube को मैं लिख सकता हूं 3 into 3 square. इस 3 square को मैं लिख सकता हूं 3 into 3 power 1. So the base case we are identifying कि base case जहां पर ये रुक जाता है, that is 3 power 1, जो कि मजीद नहीं हो सकता. So this is the base case of this equation. Now how will I use it? Int power int x दो parameters हैं, return type integer. So I am using a function with the name of power जिसका return type we have integer. Then I have two, because एक base है एक power है, so I have two parameters. One is x, other is n, both of type integers. Now I have one base case, one is recursive case. Now वो base case क्या होगा? If n is equal to 1, जो power जब equal to 1, that will simply return x जो value है. So whenever the n is 1, so it will just return the x. That is the base case. Else क्या करे? ये अपने आप को recursively call करे. That means कि it will call it 3 into power of जो 3 power n minus 2, n minus 1, that is 4 minus 1. So that will be 3 into 3 power 3. फिर उसके बाद ये मजीद अपने आप को कॉल करता है
दैट विल अगेन डू इट, तो ये करेगा 3 पावर 3 को, ये मजीद करेगा 3 × 3 पावर 2, 3 × 3 पावर 2 को, अगर ये 3 पावर 2 को मजीद रिकर्सिवली करेगा, so that will be 3 × 3 पावर 1. 3 पावर 1 is the base case, so it will just simply return. तो ये कब तक करेगा? जब तक n is equal to 1 ना हो जाए. So that is the another example. ये example भी देख लें, और इस पे कुछ practice problem मैं देता हूँ, तो वो फिर आप लोग कर लें. अच्छा, given a positive integer n, एक positive integer n है. The factorial of n is defined as the product of all integers between 1 and n. The factorial of n क्या, कैसे हम लिखते हैं? It is integers between 1 and n जितने होंगे including n factorial हम कैसे लिखते हैं? Like 6 factorial है, it is 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. n factorial we can simply write it n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into करते कराते 3 into 2 into 1. अब यहाँ पर हमने आप लोगों को बताएं, जब भी रिकर्सिव फंक्शन हम यूज करें, सो वी हैव टू केसेस, वन इज कॉल्ड बेस केस एंड द अदर इज कॉल्ड अ जनरल केस, जो कि रिकर्सिव केस भी हम कहते हैं. सो इफ आई से इट्स अ फंक्शन, so it will return for when 0 factorial, 0 factorial सबको पता है that is equal to 1. तो 0 factorial के लिए when n is equal to 0, it will return 1. Whenever n is greater than 0, 1 factorial and things like that, this formula, which is n into function of n minus 1, हम करते हैं recursively. Now coming towards this factorial function, इसको हम algorithm define किया. First हम बता रहे हैं कि जब n 0 होता है return 1, that means 0 factorial के लिए return 1. Other than that, calculate factorial of n minus 1 और return जो हम करते हैं 6 factorial हम कैसे करते हैं? 6 into factorial of n, 6 into 5, ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा, तो ये हमारे पास 4, 5 का फैक्टोरियल इट विल बी 5 into 4, 4 का करेंगे तो 4 into 3 and so on so forth. So this is how it works. अच्छा, so we have if n is equal to 0, सिंपली एक बेस केस है, जब n is equal to 0 रिटर्न 1 करें. Now तो ये function हम use करते हैं which is factorial of n minus 1. What it will do, it will multiply like 6 into 5. ये दोबारा 5 करेगा तो 5 will be multiplied by 5 into 4, 4 into 3 and so on so forth. So this will be the recursive function. तो अब ये हम करते हैं, इसको जरा गौर से देखिए क्या कैसे करता है. For instance, if I say कि factorial of 4 calculate करना, अब फैक्टोरियल ऑफ 4 ये क्या करता है? रिकर्सिव केस, इट विल कैलकुलेट 4 इनटू ये जो हम कर रहे हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड. जब फॉर इंस्टेंस इफ आई से कि फैक्टोरियल ऑफ n, हम कहें कि 4 का फैक्टोरियल, अब 4 का फैक्टोरियल इट इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपली ये इस केस में आएगा. इस केस में इट विल बी कैलकुलेटिंग 4 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 3. ठीक हो गया? तो फैक्टोरियल ऑफ 4 विल बी कैलकुलेटेड एज 4 into factorial of 3, right? अच्छा, अब फैक्टोरियल ऑफ 3 ये तो आ गए, ये साइड आ गई. अब फैक्टोरियल ऑफ 3 मजीद, क्योंकि इट्स नॉट फैक्टोरियल ऑफ 0, तो ये मजीद नीचे जाएगी. नाउ फैक्टोरियल ऑफ 3 विल बी इक्वल टू n into factorial of n minus 1. So that will be 3 into factorial of n minus 1, which is 3 minus 1, which is 2. तो नाउ अगेन इसको अगर मैं स्प्लिट करूं इस फंक्शन को रिकर्सिवली, सो इट विल वर्क एज फैक्टोरियल ऑफ 3 विल बी 3 into फैक्टोरियल ऑफ 2. नाउ अगेन एवेलुएटिंग दिस फैक्टोरियल, रिकर्सिव फंक्शन है ये, तो कॉल खुद को कर रहा है अनटिल एंड अनलेस ये बेस कंडीशन पे ना चले. नाउ व्हाट इट विल डू, it will do factorial of 2 will be, which is n into factorial of n minus 1, which will be 2 into factorial of 2 minus 1, which is 1. Again it is doing. ये क्या कर रहे हैं? अब फैक्टोरियल ऑफ n को अगर मैं मजीद करूं सिंप्लीफाई, सो इट विल बी 1 into फैक्टोरियल ऑफ 0. तो यहाँ पर आ गया. अब ना फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए आई हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन अ कंडीशन व्हिच इज it will return 1. So what it will do, it will return simply 1. अब now backtrack करें. अब ये factorial of 0, it will multiply with this 1, it will return 1. Again
ये जब रिटर्न 1 करता है, ये फैक्टोरियल 1 से हमें रिटर्न 1 आ गया, ये फैक्टोरियल 1 is multiplied by 2, so it will be 1 into 2, it will return 2, so factorial of 2 से हमारे पास 2 आ गया, then factorial of 2 से 2 आ गया, 2 is multiplied by 3 which is 6, अच्छा तो 6 फैक्टोरियल ऑफ 3 से हमारे पास 6 आ गया, 6 is multiplied by with 4, so it will simply return 24. So with the help of recursive function हम क्या करें, हम करें कि we are just simply doing it with the help of a recursive function. तो first मैं दोबारा let me repeat ये throughout जो हमने लेक्चर लिया है उसका क्रक्स भी है, गौर से सुने। क्या हो रहा है कि हम जो भी रिकर्सिव फंक्शन करते हैं तो उसके लिए वी हैव टू केसेस, वन इज कॉल्ड अ बेस केस, द अदर is called a recursive case, right? So base case is a case where it will stop some terminating condition or stopping condition. The other will be the smaller version of itself. Now, based on the previous, we have formed an algorithm. The base case is when we have 0 factorial that simply will return a 1. Else, it will calculate a factorial which is n into factorial of n minus 1. So simply हमने दो केसेस, तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपने पहले क्या करना है, एल्गोरिथम बनाना है, दो केसेस बनाने, वन इज बेस केस, द अदर इज रिकर्सिव केस। अच्छा वो बना दिया, देन आई एम जस्ट मेकिंग अ प्रोग्राम आउट ऑफ इट। इसको फैक्टोरियल के लिए वी हैव अ सिंपल सिंगल पैरामीटर दैट इज n फैक्टोरियल मींस, तो n एक सिंपल, रिटर्न ये क्या करते हैं इंटीजर, तो रिटर्न टाइप इज दिस। Now the base condition is simply, which is if n is equal to factorial of 0 के लिए it will return 1, else recursive case है which is n into factorial of n minus 1. Now doing it with the help of an example, for instance if I tell you to evaluate factorial of 4, तो 4 का factorial क्या होता है, normally it is 4 into 3 into 2 into 1. So 4 3s are 12, 12 2s are 24 and 24 1s are 24. So the output should be 24. While doing with the program हम क्या करते हैं, evaluate 4 into factorial of n minus 1. First step में ये क्या कर, factorial of n, so it will become 4 into 4 factorial of n minus 1 which is 4 minus 1 which is factorial of 3. तो 4 into factorial of 3. Factorial of 3 मजीद recursive recall होगा. So it will be factorial of 3 will be n into factorial of n minus 1. So 3 into factorial of 3 minus 1 which is 2. Factorial of 2 are factorial of 2 मजीद हम करते हैं, so that will be 2 into factorial of n minus 1 which is factorial of 1. Factorial of 1 हम करते हैं तो इस 1 into factorial of 1 minus 1 which is 0. Factorial of 0 के लिए we have a base condition, ये रिकर्सिवली फेल, ये बेस स्टॉपिंग कंडीशन, यहाँ पर स्टॉप होके इसे पता है अब ये बैक ट्रैक करके ये कैलकुलेट करेगा, सो इट रिटर्न 1, so 1 into 1 it will be 1, तो factorial of 1 will be 1, 1 into 2 will be 2, so factorial of 2 is 2 which will be here, 2 into 3 is 6 which is factorial of 6, 6 into 4 is 24. This is how it works. So simply हमारे पास we have main function, factorial of 4 कॉल हुआ, जब factorial of 4 कॉल हुआ so it will be 4 into factorial of 3. Factorial of 3 को मजीद हम स्प्लिट करते हैं which will be 3 into factorial of 2. Factorial of 2 is 2 into factorial of 1. Lastly we have factorial of 1 which is 1 into factorial of, तो यहाँ पर ये अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं until and unless it met a condition which is a stopping or terminating condition. From there factorial of 0 you know it will return 1. So factorial of 0 will return 1. So 1 into 1 it will return 1. Now after this it will return 1. Now here we have instead of factorial 1 we have 1. So for 1 will multiply by 2, it will return 2 which is basically factorial of 2. 2 into 3 which will return 6 which is factorial of 3. So 6 into 4 it will return 24. So this is how. So recursive rule, this is last slide for today. यहाँ तक करते हैं, rules क्या हैं, a recursive function must call itself. Yeah, okay. It is essential for a function to call itself. Otherwise, in simple words, it will not take place.
Acha, secondly, we had studied only user defined function can be called or used in recursion, not predefined or library defined. Thirdly, we have there must always be a terminating condition which is called a base case. Just simply आपने previously कहा देखा if n double equal to 0 return 1, like just in case factorial के लिए जब 0 factorial होता है तो it is equal to 1. So we had a case for that particular thing as well. Then we have for stopping to stop the recursive function, it is necessary to base the recursion on some test condition and proper terminating. So such as exit हम use करते हैं या return हम करते हैं जिस तरह return one हमने किया. So it will be using if statement just like this. If n is equal to 0, so we had this. When a recursive function is executed, the recursive calls are not implemented instantly. जब भी रिकर्सिव फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते इंस्टेंटली. ये क्या होता है हम देख रहे थे कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, ये स्टैक पे जाते हैं. इन दिस एग्जांपल यू कैन जस्ट से ये स्टैक में जा रहे थे तो दे वर जस्ट piled up on the stack. So they are all the recursive calls are pushed onto stack until the termination. तो ये स्टैक पे थे जब टर्मिनेटिंग कंडीशन जब तक डिटेक्ट ना हो. फिर क्या होता है जब टर्मिनेटिंग कंडीशन आ जाती है तो जो स्टैक थे वो पॉपअप होते हैं, बैक करते हैं. तो द रेड लाइंस आर शोइंग द पॉपअप, द ग्रीन लाइंस आर शोइंग दैट दे आर ऑन द स्टैक. So during recursion at each recursive call new memory is allocated. हर दफा एक new memory allocate होती है to all local variables of the recursive function against the same name. So these are some rules. So without a base case, the function will keep calling itself forever, which causes infinite recursion, and it will basically cause a stack overflow. So recursive calls we have just studied, they are stored in a stack and last in first out order में. जो लास्ट इन था वो फर्स्ट आउट होगा. लीफो आप स्टडी करेंगे लास्ट एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है उसी सीक्वेंस में. दिस इज लास्ट इन फर्स्ट, तो लास्ट इन जो होता है वो फर्स्ट आउट. तो दिस इज आल्सो अनदर थिंग जो हम कह सकते हैं कि दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. So few slides are remaining, but we can just study it tomorrow. So any question or confusion? Then we will be just moving towards the attendance. कोई क्वेश्चन सर या एक confusion? स्लाइड थी जिसमें आपने बताया था कि जब हम पावर में n-1 करते हैं फिर n-2 भी करते हैं. n-1 का तो समझ में आ गया, n-2 कैसे करेंगे हम लोग? अच्छा, let me just scroll to the slide. That was just showing the showing कि ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता हाँ है यहाँ पे कैसे. ये हाँ ठीक हो गया. मैं जस्ट रिकर्सिव केस समझा रहा हूँ कि रिकर्सिव केस कैसे निकलता है. x of n that means कि x को हम मल्टीप्लाई करते हैं n times, right, which we can write कि x into remaining x. So that means these were n times, so that is n minus 1 times, right. हम्म ठीक है. ठीक है These are ठीक है. total of n times, that is x into n. So I have just removed a single x, the remaining is n minus 1 times, right. Right. I can also write it in a way कि दो x निकाल के the remaining are Oh. n minus 2 times, right. Got the point. got Again, so this is how I can. So simply if I say कि I have a base condition and the remaining is a recursive condition, that is as a whole a recursive condition. But with the program मैंने explain कर दिया कि there is a base condition which is 3 power 1 कि ये मजीद नहीं split कर सकते. यहाँ देखें 3 power 4 को मैं split कर सकता हूँ. फैक्टोरियल एक recursive case बना which is 3 into 3 power 3. सेकेंडली 3 पावर 3 को मैं मजीद इस केस को मजीद मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, मजीद मैं इसको रिकर्सिवली. सो आई कैन जस्ट राइट 3 पावर 3 into 3 पावर n minus 1 which is 2. इस 3 पावर 2 को मजीद मैं लिख सकता हूँ 3 into 3 पावर 1. 3 पावर 1 को मजीद मैं नहीं कर सकता. सो दिस इज द बेस केस. तो एक बेस केस जब दैट मीन्स के पावर इज इक्वल टू 1, सो रिटर्न सिंपली दैट बेस. एल्स क्या करता हूँ मैं वही रिकर्सिव फंक्शन विच इज n या x into power of xn minus 1. ठीक हो गया. So this is how